Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. पिपेट मेथड फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार हम. Dry soil of how much amount of soil we have taken for pipette method? 12 to 30 gram. 12 to 30 gram. Passing through which sieve? 75 micron. 75 micron sieve. Is added in water to form how much volume of soil suspension? 500 ml. 500 ml. We have to take 12 to 30 gram here. This is not 50. This will be 12 to 30 gram. This soil will be 12 to 30 gram. And we have to mix this soil in water to prepare a soil suspension. This is soil suspension. The volume of this soil suspension is 500 ml. This is 500 ml. The suspension is stirred and allowed for settling. Soil को 500 ml डिस्टिल वाटर में मिक्स करने के बाद इसको सेटलिंग के लिए छोड़ देते हैं. उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं? ऑब्जर्वेशन. कितना कितना देर पर ऑब्जर्वेशन लेते हैं? फर्स्ट रीडिंग इज टेकन एट 2 minutes, 4 minutes. 2 minutes, 4 minutes, 8 minutes, 15 minutes, and 30 minutes. This is the time in minute. After that, we have to take reading at 1 hour, 2 hour, 4 hour, 8 hour, and 24 hour. This is the time in hour. Before taking observation, we have to take 2 treatments. Observation, 2 treatments are required. What are those treatments? First is pre-treatment of soil. Pre-treatment of soil हम लोग क्यों देते हैं? सर इनऑर्गेनिक मटेरियल को रिमूव करने. Silt and clay तो ही Organic material को remove करने के लिए. silt and clay. This is inorganic material. सॉरी सर, ऑर्गेनिक मटेरियल को रिमूव करने. उल्टा बोल दी. Inorganic material and calcium compound. कैल्शियम कंपाउंड को भी हम लोग रिमूव करते हैं प्री ट्रीटमेंट में. पोस्ट ट्रीटमेंट हम लोग क्यों करते हैं? फ्लो की रिमूव करने सर. फ्लो को रिमूव करने क्या ऐड करते हैं हम लोग फ्लो को रिमूव करने के लिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. डिस्पर्सिंग एजेंट ऐड करते हैं. कौन कौन सा डिस्पर्सिंग एजेंट हम लोग ऐड किए थे उसमें? याद है? सर कैल्शियम कार्बोनेट और हाउ मच अमाउंट ऑफ सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट सोडियम 33 gram sodium hexametaphosphate and 7 gram of sodium carbonate. Now pre-treatment. Soil contain organic compound. Calcium compound and silt and clay. Silt and clay is inorganic compound. We have to find percentage finer of inorganic compound, not organic compound and calcium compound. So to remove organic compound, what is added in soil suspension? ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं सॉइल सस्पेंशन में? H2O2 सर. हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड.
Formula of hydrogen peroxide is H2O2. How much amount of hydrogen peroxide is added in soil suspension? कोई बता सकते हो कितना ऐड करते हैं? देखो 100 ग्राम सॉइल रहेगा तो उसमें हम लोग 100 ml, ये सॉइल रहा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज H2O2, मीन्स 1 ग्राम सॉइल में 1 ग्राम हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करते हैं, नहीं 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करते हैं इफ organic compound is present in soil. If not present, then we have, then in that case we don't have to add H2O2. How to remove calcium compound? कैल्शियम कंपाउंड को कैसे रिमूव करते हैं हम लोग? by adding oxidizing agent. नहीं, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिमूव नहीं करते हैं, इसके लिए हम लोग ऐड करते हैं 0.2 N HCl. HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको भी इसी अमाउंट में ऐड करते हैं, 100 ग्राम सॉइल के लिए 100 ml 0.2 N HCl ऐड करते हैं। दिस ट्रीटमेंट इज गिवन बिफोर प्रिपेयरिंग द सॉइल सस्पेंशन। सॉइल सस्पेंशन बनाने से पहले हम ये ट्रीटमेंट दे देते हैं जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड और कैल्शियम कंपाउंड रिमूव हो जाता है। पोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, हम लोग कौन सा सॉइल यूज कर रहे हैं यहाँ पर? क्ले एंड सिल्ट। सिल्ट एंड क्ले। Silt and clay may form flocks due to its size of particle increases. Therefore, to break these particles or break these flocks, dispersing agent or deflocculating agent are added. According to IS 2720 part 4, we have to add 33 gram sodium hexametaphosphate and 7 gram of sodium carbonate in 1 liter of water. After that, we have to take 100 ml of this water. 100 ml of this water. What is the total weight of dispersing agent in 1 liter water, distilled water? टोटल वेट कितना है डिस्पर्सिंग एजेंट का 1 लीटर डिस्टिल वाटर? यहाँ पे 40 ग्राम। 40 ग्राम। टोटल वेट ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट। यह 40 ग्राम। इसमें से हम लोग कितना लिए हैं? 100 ml वाटर। ये रहा 100 ml वाटर। इसमें कितना डिस्पर्सिंग एजेंट होगा? 4 ग्राम। 4 ग्राम। इसको कैसे निकालेंगे? 1000 ml में 40 ग्राम डिस्पर्सिंग एजेंट प्रेजेंट है, तो हमको निकालना है 100 ml में, तो हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, ये हो जाएगा 4 ग्राम। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? 12 to 30 ग्राम, सॉरी 24 to 60 ग्राम क्या करेंगे? सॉइल को मिक्स कर देंगे। यहाँ पे 2 गुना सॉइल ऐड करते हैं, क्यों करते हैं वो आगे पता चलेगा। 24 to 60 ग्राम सॉइल यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं इसको? It is filled, this container is filled with distilled water up to 1000 ml water. The volume of this water is 1000 ml. Now we have to take only 500 ml of this water. 500 ml. So what is the soil present in this case?
12 to 30 gram. 12 to 30 gram. What is the weight of dispersing agent in 500 ml soil? 2 gram. How much? सर डिस्पर्सिंग एजेंट 2 ग्राम होगा ना? 2 ग्राम जितना इसमें था, इसमें टोटल 4 ग्राम था। 4 ग्राम था। सॉइल कितना था? 24 to 1000 60 लीटर. सॉइल 24 to 60 ग्राम। इसमें से हम लोग हाफ लिए हैं, हाफ वाटर लिए तो सब कुछ आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो वो सॉइल हो गया 12 to 30 ग्राम एंड डिस्पर्सिंग एजेंट, दिस इज कॉल्ड वेट ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट व्हिच इज इक्वल टू, this is weight of dispersing agent in 500 ml soil. Weight of dispersing agent which is equal to 2 gram. अब इस वाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको क्या करते हैं, पिपेट के अंदर डाल देते हैं। सर एक डाउट है सर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आप पूछ सकते हैं। सर हम लोग जब सॉइल सस्पेंशन बना देते हैं तो हम लोग एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि वो उतना ही निकलेगा? सस्पेंशन में हो सकता है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, इसको क्या करते हैं, एक रबर बंड से इसको क्लोज करके इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, इसको टर्न करते हैं। टर्न करने से इसे पूरा सॉइल अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसलिए हम इसका आधा पोर्शन ही लेते हैं। तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं इसमें हाफ पोर्शन ही होगा। एग्जैक्टली होगा कि नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं ये जो मिक्सचर है ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ये हाँ एजम्पशन सर, है। डाउट इसलिए था सर क्योंकि हम लोग जब सॉइल मिला रहे हैं उसमें 24 to 60 ग्राम, और जब हाँ उसका सस्पेंशन बनाते हैं तो उसका पार्टिकल भी कुछ सेटल करेगा नहीं, टाइम हम के लोग साथ में, और हम लोग एग्जैक्ट उसी टाइम पे उसको उतना निकाल सकते हैं सर। तो 50% उसका आ जाए 12 to 30 ग्राम। हम लोग अच्छे से मिक्स करने के बाद लेते हैं, तो हम लोग ये मानते हैं कि ये हाफ पोर्शन ही होगा। तो ये सर हो उसमें कुछ सेटलिंग भी तो हो सकता है सर ना, हाँ हो सकता है, पार्टिकल। लेकिन मतलब अच्छे से मिक्स करने के जस्ट बाद हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग ये मानते हैं जो हाफ पोर्शन ही इसका इसमें आया होगा 500 ml में। तो अभी हम लोग यही मानते हैं कि इसमें ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ये दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर। यस सर, मतलब हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि उतना ही पोर्शन हमारा हाँ इसमें आ रहा है, यही? हाँ। ओके सर, दैट्स इट। अब इसको क्या करते हैं, इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद इस सॉइल सस्पेंशन को इसको पिपेट के अंदर डाल देते हैं, दिस इज पिपेट। इस समय हम लोगों का सॉइल कैसा है, होमोजीनियस, सभी पार्टिकल किसी भी लेयर पे सभी पार्टिकल प्रेजेंट हैं। तुम कोई भी लेयर लोगे तो उस पे सभी पार्टिकल प्रेजेंट हैं। तो पार्टिकल बहुत छोटा होगा, इसमें बड़ा बड़ा दिखाया गया है। इसमें कोई भी लेयर पे सभी पार्टिकल प्रेजेंट है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें सभी पार्टिकल को सेपरेट करके दिखाया गया है। हमको फर्स्ट रीडिंग कब लेते हैं हम लोग? 2 मिनट पे. आफ्टर 2 मिनट। तो 2 मिनट से 20 सेकेंड पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पिपेट को सॉइल सस्पेंशन में इंसर्ट करते हैं। मीन्स कब हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे सॉइल सस्पेंशन? 1 मिनट एंड 40 सेकंड में. 1 minute 40 second. After 1 minute 40 second, we have to insert this pipette in soil suspension. Now we have to take, what is the volume of pipette? 10 ml. 10 ml. What is this depth? 100 This is called 100 mm. This is called sampling depth, which is represented by He. Sampling depth means the depth at which from which the volume of soil suspension is taken to calculate the percentage finer. ये वो डेप्थ होता है सैम्पलिंग डेप्थ, जहां से हम लोग सॉइल सस्पेंशन लेते हैं और उससे परसेंटेज फाइनल कैलकुलेट करते हैं। ये पिपेट मेथड में फिक्स होता है और ये वैल्यू होता है H इक्वल टू 100 ml।
आइदर 10 सेंटीमीटर और 100 मिलीमीटर, 100 ml, सॉरी 100 मिलीमीटर और 200 मिलीमीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ये फिक्स होता है, पिपेट मेथड में ये सैंपलिंग डेप्थ फिक्स होता है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सॉइल सस्पेंशन पिपेट में लेते हैं। देखो ये आफ्टर 2 मिनट है, आफ्टर 2 मिनट सभी लेयर पे जो सॉइल पार्टिकल का कंसंट्रेशन वो डिफरेंट है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लेस डेंसिटी होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे और ज़्यादा होगा, नीचे बढ़ते जाएगा क्योंकि पार्टिकल धीरे धीरे सेटल कर रहा है। जो बिगर पार्टिकल होगा वो जल्दी सेटल करेगा, जो उससे स्मॉलर होगा वो धीरे से सेटल करेगा, क्योंकि सेटलिंग वेलोसिटी इक्वल टू होता है g/18 g-1 d square divided by nu, means settling velocity is directly proportional to square of diameter of a particle। जिसका पार्टिकल का साइज जितना ज्यादा होगा वो जल्दी सेटल करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 10 ml वॉल्यूम सॉइल सस्पेंशन का पिपेट में ले लेंगे और उसको दूसरे कंटेनर में लेंगे। ये कंटेनर, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 10 ml। 10 ml। ये 10 ml से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि देखो कुछ पार्टिकल होता है इसमें स्टिक कर जाता है, तो उसको भी हम लोग रिमूव करते हैं एक्स्ट्रा डिस्टिल वाटर डाल के। तो ये इसका वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है। ये डिस्टिल वाटर है, इसमें कोई भी अदर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें जो वेट है, वेट ऑफ पार्टिकल वो हमेशा कांस्टेंट ही होगा, वो चेंज नहीं करेगा, सिर्फ वाटर चेंज करेगा। अब क्या करेंगे, इसको इसको ओवन में डाल देंगे। कितना टेम्परेचर पे, 105 to 110। 105 to 110 डिग्री सेल्सियस। फॉर हाउ मच आवर, 24 hour। for 24 hour। आफ्टर 24 आवर हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनर को ओवन से बाहर निकाल लेंगे और उसका वेट मेजर कर लेंगे। इसका वेट हम लोग क्या माने थे, W dry। डब्ल्यू ड्राई। हम लोग एक ऐसा पार्टिकल एज्यूम कर रहे हैं जो टॉप लेवल पे है, जिसका डायमीटर d है। डायमीटर ऑफ दिस पार्टिकल इज d। वो t टाइम के बाद he डेप्थ, ये डेप्थ है he, वो t टाइम के बाद यहाँ पे आ गया है। he डेप्थ ट्रेवल किया है t टाइम में। आफ्टर टाइम t it travel he distance, then what is the velocity of this particle, He upon T। he upon t। This is the settling velocity. We are assuming that after suspension all the particles are settling with velocity vs, so the settling velocity will be equal to he divided by t। Another formula of settling velocity is equal to g/18 g-1 d square upon nu। g-1 d squared upon nu। यहाँ से हम लोग उस पार्टिकल का डायमीटर निकाल लेंगे, जो पार्टिकल he t टाइम में he डिस्टेंस he डेप्थ ट्रेवल किया है। ये हो जाएगा 18 he इंटू न्यू। सर आपका आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है। अभी भी कट रहा है क्या, यस सर। देयर माइट बी सम नेटवर्क इशू सर।
अभी भी कट रहा है क्या? अभी क्लियर है क्या? यस सर, अभी क्लियर आ रहा है। ठीक है सर। Okay. This will be equal to Vs He 18 He into nu divided by G into T into G minus 1. This is the diameter of particle which settle He depth in time T. देखो ये वो पार्टिकल था जो टी टाइम में He डिस्टेंस ट्रेवल किया था। इससे जो बड़ा पार्टिकल होगा वो कहाँ पे होगा? सर नीचे होगा, एच के नीचे। जो यहाँ पे बड़ा पार्टिकल था, इससे बड़ा पार्टिकल, वो हो जाएगा इससे नीचे। जो इससे छोटा पार्टिकल होगा यहाँ पर, वो कहाँ होगा? अच्छे के ऊपर। ये होगा यहाँ पे कहीं होगा आफ्टर टाइम टी। सपोज कुछ पार्टिकल जो है वो यहाँ पे है, इससे छोटा पार्टिकल, वो टाइम टी के बाद यहाँ पे आ गया। उससे छोटा पार्टिकल कुछ यहाँ पे था, वो टी टाइम के बाद यहाँ पे आ गया। उससे भी छोटा पार्टिकल यहाँ पे आ गया। मीन्स जो छोटा पार्टिकल है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टी टाइम में, जो बड़ा पार्टिकल है वो He डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये डी, जो डी साइज पार्टिकल है वो He ट्रेवल किया है, उससे जो छोटा पार्टिकल होगा लेस देन He ट्रेवल करेगा। सपोज ये सैम्पलिंग डेप्थ He है, सैम्पलिंग डेप्थ He ये है। ये जो पार्टिकल का था, ये पार्टिकल, ये पहले यहाँ पे था, ये पार्टिकल इस लेयर पे था यहाँ। ये पार्टिकल पहले इस लेयर पे था यहाँ पे। ये पार्टिकल यहाँ पर था। ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? एच ये He डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है जो कि लेस देन He है। ये जो पार्टिकल है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो इससे भी डिस्टेंस छोटा है। तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल होगा इस लेवल पे, उसका डायमीटर या तो d होगा, दिस इक्वल टू d, और लेस देन d। इसमें किसी को कंफ्यूजन? नो सर। इस पिपेट में जो भी सॉइल सस्पेंशन आया है उसका डायमीटर, उस पार्टिकल के साइज का डायमीटर या तो d होगा, दिस इक्वल टू d, और लेस देन d। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। ओके। देखो परसेंटेज फाइनल का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज n। क्या होता है? वेट ऑफ सॉइल इक्वल टू डी और लेस देन डी। परसेंटेज फाइनर देन d, दिस इज इक्वल टू weight of particle or weight of soil weight of soil particle having size
लेस देन इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय weight of all the particles or weight of all the soil, weight of total soil. देखो यहाँ पे जो weight of soil है, dry weight है and weight of dispersing agent वो different वॉल्यूम में प्रेजेंट है। जो हम लोग क्या मानते हैं, ये जो वेट है 12 to 30 ग्राम, इसको हम लोग बोलते हैं W टोटल। W total, this is the total weight of soil present in 500 ml soil suspension, total weight of soil। ये कितना है, 12 to 30 ग्राम, कुछ भी हो सकता है। ये कितना वॉल्यूम में प्रेजेंट है, ये 500 ml 500 वॉल्यूम में प्रेजेंट है। दिस इज प्रेजेंट इन 500 ml वॉल्यूम। W total, this is present in 500 ml volume। weight of dispersing agent, ये कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, 500 ml 500 ml वॉल्यूम। W dry, ये कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, 10 ml 10 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन को हम लोग किससे डिनोट किए हैं, इसको V से डिनोट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन को, ये भी V हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ पिपेट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, VP V से। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, वेट पर ml, वेट ऑफ सॉइल पर ml। ये कितना होगा, W total upon V W total अपॉन V। weight of dispersing agent per ml, पर ml, ये कितना होगा, WDA upon V WDA अपॉन VE VP। ड्राई वेट, ये कितना होगा, ड्राई वेट पर ml, ये वो ड्राई वेट है जो आफ्टर ओवन ड्राइंग ऑब्टेन हुआ था 24 आवर एट 105 to 110 डिग्री सेल्सियस। जो पिपेट में जो भी सॉइल था उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल सस्पेंशन, उसको ओवन में डाल के उसमें जो भी वेट था, उसका जो भी वेट था उसको हम लोग क्या बोले थे, W ड्राई। ये वही है। ये कितना वॉल्यूम में प्रेजेंट था, 10 ml में से 10 ml। ड्राई वेट पर ml, दिस इक्वल टू W ड्राई डिवाइडेड बाय VP। डिस्पर्सिंग एजेंट VP वॉल्यूम में नहीं है, ये कितना वॉल्यूम में है, हेलो V सर V।
परसेंटेज फाइनर यहाँ से क्या हो जाएगा, परसेंटेज फाइनर देन डी। ये कितना होगा, सर डब्ल्यू ड्राई अपॉन बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू टोटल अपॉन बी। वेट ऑफ द सॉइल पार्टिकल हैविंग साइज लेस देन इक्वल टू डी। देखो पिपेट पे जो भी सॉइल आया है उसका डायमीटर या तो डी है और लेस देन इक्वल टू डी, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ड्राई डिवाइडेड बाय वीपी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू टोटल डिवाइडेड बाय बी। इसमें और कुछ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट, सर सब्ट्रैक्ट होगा। इसमें डिस्पर्सिंग एजेंट का वेट माइनस Weight- होगा ड्राई में से। वेट ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट, ये कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, वी सर वीपी में डिवाइडेड बाय बी। और कुछ इसमें होगा क्या, इनटू 100। इनटू 100। डिस्पर्सिंग एजेंट सब्ट्रैक्ट क्यों किए हम लोग, सर सिर्फ हम लोग को सॉइल का चाहिए था। परसेंटेज फाइनल हम लोग को सिर्फ सॉइल का चाहिए, लेकिन ये जो है इसमें जो ड्राई वेट इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, सिल्ट एंड क्ले, सिल्ट एंड क्ले एंड dispersing agent. So we have to subtract dispersing agent so that we will get correct percentage final. यहाँ तक किसी कोई डाउट, नो सर। ओके नो सर। देखो इस मीटिंग एंड हो रहा है, इसके बाद फिर से ज्वाइन कर लेना। ओके सर।